have some idea about it, that it starts with the interphase, then it goes to the meiotic phase. So at the G1 phase, this is a preparatory phase for the cell cycle, where the cell starts preparing for the replication and then for the division. So the G1S, G2, this phase is known as the interphase state, and the M phase is your meiotic phase. So basically there is a order series of events from where the genome duplicates and eventually cells divides into daughter cells. So basically, what is the G1 phase? In G1 phase, this is the period between the end of M phase and the start of DNA replication. Whereas S phase is the synthesis period during which DNA synthesis occur, and where the G2 phase, this is the gap between where the DNA replication ends and the M phase started. So here also we have the G0 phase, that is known as the quiescent state. So where the cells become, although metabolically active, but it's divided into two, that is quiescent and senescent state. That is the resting phase. Okay. So here we have certain checkpoint also. So we will look it further. But basically the G1 phase, the cell size increases, nutrient and energy availability increases. Also, if there is any DNA damage, then it is seen by the G1 as checkpoint, and there is also certain growth factors. So in G1 phase, the size increases. It is the most metabolically active phase. Cell organelles get duplicated. Phase of extensive transcription and translation materials cumulative present there. Then there is the preparation for S phase. Also in DNA replication, you might have seen that there is a MCM helicase. Okay, so MCM helicase also starts synthesizes in this phase only, as well as we also have certain ORIC region from where the DNA replication starts. So the cells gets prepared itself for the DNA synthesis in S phase, right? Okay. Then we have the S phase where the DNA replication starts, histone synthesis starts, MCM helicase gets activated. Here the synthesis starts, and here what the MCM helicase activated for the DNA replication. In this basis, the CSIR net question also came, and that in which phase the MCM helicase gets synthesized. So do remember these things. Okay. So second question also came in one paper, that where the centriole duplication starts. Okay, but we know that in M phase the spindle fibers get detached, and there the complete centromere formation occurs, but it starts at the S phase. Then we have the G2 phase where central duplications get completed. Okay, then tubulin protein synthesis, M phase protein synthesis, and the phase of the final check, that whether we should send our cells to the next meiotic phase, because if one cells get, but there is also one spindle cell checkpoint, but cells get itself checked कि हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. अगर कोई DNA डैमेज है या फिर कोई प्रोटीन ठीक से सिंथेसाइज नहीं हुआ है तो उसको आगे नहीं बढ़ना है, वरना क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा. ठीक है. So the G1 phase lasts for the 11 hours, whereas S phase lasts for the 8 hours, and G2 for the 4 hours. Okay. Then M phase, like when you get prepared for everything, आपका खाना के लिए बनाने के लिए तैयारी हो गई है, then M phase it lasts only for 1 hour. तो 1 hour में cell division हो जाता है. Okay. So now अब इस cell cycle को control कौन करता है? ठीक है. तो this cell cycle gets control, मतलब इसके 2 units होते हैं जो cell cycle को regulate करते हैं. One is your cyclin and another one is your cyclin dependent protein kinase. Okay, so this requirements, this is your cyclin. Cyclin is what your regulatory component. It means regulate कर सकते हैं अपन किसी चीज को. Regulate करना मतलब अगर उसका degradation हुआ या फिर उसका phosphorylation हुआ, तो there we can manipulate things. That is your regulatory component. Okay, so it goes the cycle of synthesis as well as the degradation. Second one is your cyclin dependent kinase, which is your catalytic सब यूनिट, जो कि क्या कराता है, साइक्लिन को बाइंड कराता है और वो एक्ट करता है एज अ
प्रोटीन काइनेस उसके फॉस्फोराइलेशन पे। ओके देन जैसे मैंने कहा कि एक की साइक्लिक ऑफ इवेंट्स होता है, मतलब जैसे कि साइक्लिंग का एक्सप्रेशन अलग अलग फेजेस में होता है। सबसे पहले जैसे कि साइक्लिन का कंसंट्रेशन है, तो G1 फेज में क्या हुआ, साइक्लिन का कंसंट्रेशन बढ़ते गया। ओके दैट इज G1 phase in cycline D. Then as we move on to the S phase, then cycline E. As we move on between the S and G2 phase, cycline A. And then finally when we come to the mitosis phase, then cycline B eventually increase. Okay, so this table is very important, which consists of vertebrate cyclines and CDKs. So here we can see that in G1 phase there is 40 and 60. 4 and 6 is what? Your CDKs, right? And cycline is your D. So in D, here you can see that with the red this graph. So you can see that in G1 phase the 60 and 40 gets increased. Then as we move on to the G1 to the S phase, then this is our next cycline E with CDK2. It gets increased. So this table is very important. You need to remember this because so many questions come from this table. Okay. So I can give you like a trick or something. So you just first write this phases, that is G1, G1S stage, S, then G2M stage, then meiotic stage. Then go with the ascending order B, A, E, D, D, and then 1, 1, 2, 2, 4 and 60. So this kind of thing you can make your own trick to remember this table. Okay. Yes, ma'am. जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे आते हैं, जैसे कि सेल का जो जीवन फेज में अपन ने देखा कि वो प्रिपरेटरी फेज होता है सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास 2N और 2C, दैट इज अवर व्हाट, क्रोमोसोम एंड DNA, राइट। अब एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा, DNA का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज योर DNA सिंथेसिस। C represent here your DNA, N represent here is your chromosome. अब क्या होता है, अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया तो देयर विल बी डिफिकल्टी, जैसे कि एनोप्लॉइडी हो जाएगी अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हुआ, ठीक है। या फिर अगर क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हुआ तो देयर इज ट्राइसोमी डिजीज, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्ड, देयर आर मैनी क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज विल ऑकर। सो इसलिए हमको क्या करना है, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना है और डीएनए का सिंथेसिस कराना है। तो जब एस फेज आती है तो डीएनए का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही हम एस फेज टू कहाँ जाते हैं, G2 फेज में, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज वो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन, बट क्रोमोसोम विल रिमेन कांस्टेंट, बट हमारा डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। ओके, नाउ वी विल गेट इनटू सम क्वेश्चंस। ओके, so there are some previous year questions. Okay, so here you can see that which one of the following statements about M phase cycline is correct. So anyone wants to try this question? Hello? Yes, ma'am. Yes, just I will help you out with these answers, but at least I want you to try once. भले वो गलत आंसर ही दो, but I have just explained this, so I just expecting कुछ तो आंसर है. So the question is, which one of the following cycline statements? A type में. अच्छा, okay, you're okay answering this question. Which one of the cyclines Yes, have or ma'am. has essential functions in S phase of cell cycle? Okay. Anyone else? A type में. Yeah. Okay. It's the right answer. And anyone wants to try this 35th question? समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? यही होगी। हाँ, यही हो रहा है। हाँ, A क्यों होगा? Anyone wants to give explanation for it? हम साइक्लिन ए ही प्रेजेंट रहता है ना ड्यूरिंग एस फेज। और कौन मैम सी CDK? CDK2 होता है उसमें, CDK2 होता है तो CDK2 उसको साइक्लिन A एक्टिवेट करता है। वेरी गुड, ठीक है।
अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव तब होता अगर यहाँ पे साइक्लिन ई भी होता, ठीक है। डोंट जैसे कि जब भी एनालिसिस करो ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में अलग पैरामीटर्स भी देखना कि अगर साइक्लिन होता तो क्या होता। जैसे यहाँ पे बोथ बी एंड टी टाइप्स दिया हुआ है ना, अगर इसकी जगह बोथ ई एंड ए देता तो शायद बोथ ई एंड ए भी आंसर हो सकता था, ठीक है। अब कमिंग तो इसका सही आंसर क्या है, ए टाइप, क्योंकि साइक्लिन कौन सा सीडीके, CDK2. वेरी गुड, CDK2 मैम. CDK2 with A type cyclins. Okay. Coming to next question, which one of the following statement about M phase cyclin is correct? इसका आंसर ट्राई करो. What? साइक्लिन बी. इसमें इसका आंसर बताओ कि साइक्लिन सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन. यस सिंथेसिस मैम, ऑफ करेक्ट है ये बात. ओके गुड. तो बेसिकली अपन ने जैसे जो साइक्लिंग वाला पार्ट देखा तो उसमें क्या था, हाँ तो अब देखो दिस इज लाइक गुड कि तुमने सही आंसर दिया. तो जब क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है, जैसे मैंने बताया साइक्लिन में फॉस्फोराइलेशन होता है, डिफॉस्फोराइलेशन होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है. ओके अब यहाँ पे क्या होता है साइक्लिन डी, साइक्लिन ए, साइक्लिन ई, सी और डी, इनका क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है. लेकिन साइक्लिन बी का क्या होता है डिग्रेडेशन होता है. अब उसके डिग्रेडेशन से ही क्या होता है सेल जो है वो आगे बढ़ता है, लाइक मियोटिक फेज पे आगे बढ़ता है. क्लियर? तो इसलिए Yes, इसका ma'am. आंसर ये है साइक्लिन सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन. ठीक है. अब दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं. सिंथेसिस ऑफ न्यू साइक्लिन बट नॉट डिस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अपन को क्या चाहिए हाँ तो दिस स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग बिकॉज अपन को क्या चाहिए डिस्ट्रक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. वी विल सी फर्दर कि डिस्ट्रक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके साइक्लिंग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग काइनेजेस बोथ एग्जिबिट साइक्लिक एक्सप्रेशन पैटर्न ड्यूरिंग सेल साइकिल. तो बोथ का एग्जिबिशन इज नॉट कंपल्सरी. Fourth one is cyclic pattern of cyclin protein is regulated by the controlled translation of stored. No, ये सब like not relevant thing है. So cyclin synthesis and destruction is essential for cell cycle progression. Okay. Now coming to next, we have certain model organisms. अब अपन साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको मॉडल ऑर्गेनिज्म तो चाहिए कि हम उस चीज को क्या कर सके, प्रूफ कर सके. ओके तो हमारे पास सबसे बेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो हम जिस पे हम स्टडी कर सकते हैं? एनीवन? हेलो, एनीवन कैन टेल मी इन विच यूकैरियोटिक वी कैन बेस्ट स्टडी? मैम ईस्ट. East, very good. Also there is C. elegans also there, right? But अगर हम that is also a model organism where we can do study. But here we have studied in smaller eukaryotes, that is our fusionist and the buddingist. Okay. So fusionist में क्या है Schizosacromyces pombe, जो कि क्या करता है सिंगल साइक्लिन और सिंगल सीडीके से रेगुलेट हो जाता है. ओके एंड दैट इज इसमें जो साइक्लिन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है CDC13 और इसमें जो CDK प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है CDC2 विच इज इक्वलेंट टू अवर CDK1. ठीक है. हमारा जो CDK1 था उसका क्या रेगुलेशन था? एनीवन? हमारा जो CDK1 था मैम आराम बी. साइक्लिन बी. ओके यस साइक्लिन बी. अब ठीक है आवाज? हेलो. यस मैम. हाँ ओके सो हमारे में जो साइक्लिन था वो कौन सा वर्क कर रहा था? साइक्लिन बी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लिन. तो यहाँ पे जो CDC2 है विच इज सिमिलर टू अवर CDK1 एंड द साइक्लिन विच इज प्रेजेंट इज CDC13 एंड CDK विच इज प्रेजेंट इज CDC2 एंड CDK1 in case of vertebrates. Okay, then we have the Saccharomyces cerevisiae which also regulates in G1S, S cyclins and the M cyclins. But here the CDK is very constant, that is CDC28.
So in S. pombi and S. cerevisiae, we have CDC2 and CDC28, which is regulated by the cyclins that are CLN3, CLN1 and 2, CLB5, 6, CLB1, CLB2 and CLB3, 4. Okay, you need to like slightly remember it that which CDKs are working here. Okay. Then coming to next, how could you estimate the cell cycle phase, that is G1S, G2M durations by the microscopy. Okay. So the pulse and chase experiment is a two-phase technique which is used to examine the cellular process कि मतलब कितने टाइम पे हो रहा है. तो जनरली उन्होंने क्या किया था, इथिडियम डाईयूरिडिन को टैग कर दिया था, और इस इथिडियम डाई जो थाइमिन है, दो चीज कर सकते हैं, या तो हम थाइमिडिन से कर सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं 5-ब्रोमो 2 डीऑक्सीयूरिडिन के साथ कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद जब हम इसको टैग कर देते हैं, टैग करने के कुछ टाइम बाद, जैसे 2 आवर्स के बाद या फिर उसमें थोड़ा सा गैप हो गया 14 आवर्स के बाद, फिर वो एक लाइट देता है जिसको सेल सस्पेंशन से हम निकाल के वी कैन गो फॉर द फ्लो साइटोमेट्री. और उस फ्लो साइटोमेट्री में वी कैन डिटेक्ट कि कितने कौन कौन से फेजेस में हमारा सेल साइकिल जो है वो रेगुलेट कर रहा है आफ्टर लेबलिंग इट विद द थाइमिडिन एज वेल एज 5-ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन. ओके. तो जब ये माइटोटिक सेल्स को अपन लेबल कर देते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, जो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे है, तो उसके बाद जो सबसे पहले क्या होता है अपना G1 स्टेज आता है. लेकिन G1 स्टेज में ऐसा कुछ हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है. लेकिन क्या होता है G2 में सबसे ज्यादा, मैंने बताया था, सबसे ज्यादा 4C आ जाता है, मतलब डीएनए कंटेंट है वहां पे. तो इसलिए G2 फेज में ये यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या दे रहा है, ग्राफ इज शोइंग लाइक दिस बिकॉज देयर इज अ डीएनए कंटेंट. देन S फेज में सबसे ज्यादा डीएनए कंटेंट, and then there is a decreasing graph which tells you about G2 plus M plus G1 phase. Okay, so where there you will be getting a very less DNA content. So by this graph you can know how much mitotic cells are labeled there and in how much time you are getting this graph of different phase of cell cycle. Okay. Okay. Now for the regulation activity of cycling CDK complexes. अब इसका रेगुलेशन करना है अपन को. ठीक है. रेगुलेशन इन द सेंस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स किस चीज़ों के इसके थ्रू रेगुलेट होता है. तो 3 चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम इसका रेगुलेशन करा सकते हैं. दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन्स. ओके. सो व्हाट इज योर डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन बाय SCF. Okay, I will explain the further slide. What is SCF? What is APCC complex? अब हमने प्रोटीन तो बना लिया है, लेकिन जो प्रोटीन हमको नहीं चाहिए, जिसमें कुछ डिफेक्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, हटाने के लिए हमको कोई एक प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसके थ्रू उसका डिस्ट्रक्शन हो सके. ठीक है. सेकेंड वन इज योर फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. थर्ड वन इज योर बाइंडिंग ऑफ CDK इनहिबिटर्स. ओके. नाउ द फर्स्ट वन इज योर साइक्लिन डिस्ट्रक्शन. ओके. तो ये क्या होता है, यूबिक्यूटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस. अब यूबिक्यूटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस क्या होता है, ये एक एंजाइम से रेगुलेट होता है, जो कि एंजाइम क्या है, यूबिक्यूटिन लाइगेज है. अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर CSIR. तो अब जैसे देखना यहाँ पे यूबिक्यूटिन 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 अगर किसी सेल पे टैग हो गया, इसका मतलब वो सेल समझ लेना कि उस प्रोटीन को किस पे जाना है, डिग्रेडेशन में जाना है. ठीक है. तो अब इस प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स के 3 एंजाइम्स होते हैं. एक होता है E1, दूसरा होता है E2, तीसरा होता है E3. और ये क्या करते हैं, रिंग लाइक डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं. तो सबसे पहले E1 एंजाइम है, उस पर यूबिक्यूटिनेशन होता है, वो उसको ट्रांसफर करता है किस पे, E2 पे, फिर E3 पे. और यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट में 3 यूबिक्यूटिनेशन होता है. और जब अगर हो गया यूबिक्यूटिनेशन किसी सबस्ट्रेट पे, तो वो किसके पास भेज देता है, 26S प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज देता है कि अब तुमको इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है. ठीक है. और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, रिंग लाइक डोमेन का फॉर्मेशन होता है. जब ये इसके बाद एक बार अगर ये डिग्रेड हो गया प्रोटीन, तो फिर से ये यूबिक्यूटिन क्या होता है, रिसाइकिल हो जाता है और किसी दूसरी प्रोटीन के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है. ठीक है. अब ये जो रिंग लाइक डोमेन है हमारे पास, ये जो रिंग लाइक डोमेन है, इस रिंग लाइक डोमेन के 3 सब यूनिट्स होते हैं बेसिकली, और मल्टी सब यूनिट्स भी हो सकते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स जिसको अपन बोलते हैं CUL1, SKP1, FBP,
जिसको बोलते हैं एफ बॉक्स और RBX1। ओके, तो ये सब क्या कहते हैं, रिंग लाइक डोमेन बनाते हैं और इसी के ऊपर क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट के बाद इसी पे क्या होता है, यूबिक्विटिनेशन होता है। यहाँ पे क्या है, फॉस्फोराइलेशन, जैसे फॉस्फोराइलेशन हुआ सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट के बाद तुरंत क्या आते हैं, यूबिक्विटिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यूबिक्विटिनेशन जैसे होने लगा वापस वो किसके पास भेज देगा, 26S प्रोटियोसोम के पास भेज देगा और क्या हो जाएगा, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हमारे पास दो सब यूनिट्स है, एक है SCF और दूसरा क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और इस SCF के 3 है, एक F बॉक्स प्रोटीन है, कल1 है और SKP1 है। इसका इंपॉर्टेंट अपन को थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाऊंगी तब समझ में आएगा, जहाँ पे जिसका डिस्ट्रक्शन कंपलसरी है कौन से फेज में, G1 फेज साइक्लिन्स पे। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं, सेकंड जो अपना था वो था फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन। तो अब फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है सेल साइकिल में, यू विल गेट टू नो इन दिस स्लाइड। तो अब क्या होता है, CDK1 कहाँ पे काम कर रहा था, एनीवन? M फेज में। वेरी गुड, M ठीक है, ओके। तो जब CDK1 M फेज पे काम कर रहा था तो अब ये इनएक्टिव वे में, ठीक है। तो जैसे ही साइक्लिन भी आया तो वो CDK1 से बाइंड हो गया, लेकिन स्टिल इट इज इन द इनएक्टिव फेज। तो अब क्या होता है, हमारे पास एक इनहिबिटरी फॉस्फेट आता है, ओके, एंड दैट इनहिबिटरी फॉस्फेट इज V1। ओके, तो अब ये इनहिबिटरी फॉस्फेट क्या करता है, इनहिबिटरी साइट में फॉस्फोराइलेशन करता है। ठीक है, अब वो इनहिबिटरी साइट कौन सी है, तो ऐसे एक पॉकेट लाइक फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे अपने पास 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो Y you all know that is Y is your tyrosine and T is your threonine। तो टायरोसिन 15 और थ्रियोनिन 14 पे क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, और ये फॉस्फोराइलेशन कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है, इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन। और ये जो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम करता है, दैट इज योर V1। ओके, अब जब V1 इनहिबिटरी कर दिया तब भी हमारा काइनेज जो क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम आता है, दैट इज योर CDC25A फॉस्फेटेज। ओके, अब ये जो CDC25A फॉस्फेटेज है वो क्या करता है, इसको एक्टिव कराता है। ठीक है, तो एक्टिव कैसे कराएगा, जब इसमें से क्या कराएगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट जो V1 ने लगा दिया है उसको जब वो हटा देगा। ठीक है, तो जैसे ये दोनों फॉस्फेट हट गए तो क्या होगा, हमारा CDK1 जो है वो क्या बन जाएगा, एक्टिव काइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा एक एंजाइम का रोल आता है और दिस एंजाइम इज योर CDK7 प्लस साइक्लिन H। ये CDK7 प्लस साइक्लिन H क्या करता है, ये थ्रियोनिन, यहाँ पे जो है थ्रियोनिन 161 पे क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। तो CDK7 और साइक्लिन H भी क्या कराते हैं, एक एक्टिवेशन कराते हैं, किसका, इनएक्टिव काइनेज को एक्टिव काइनेज में उसको चेंज कराने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है थ्रियोनिन 161 का, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिन B1 डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और जो साइक्लिन B1 का डिग्रेडेशन है वो क्या कैसा होगा, यूबिक्विटिन मीडिएटेड, दैट इज 26X क्रोमोसोम में 26X प्रोटियोसोम में वो जाएगा और साइक्लिन B1 का डिग्रेड कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्टिव हो गया लेकिन अब साइक्लिन B1 डिग्रेड हो गया तो फिर से CDK1 क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव काइनेज बना देगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, S फेज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, S फेज में ये क्या इनएक्टिव है। अब उसके बाद जैसे जैसे वो G2 फेज को क्रॉस किया, G2 फेज से जैसे जैसे M फेज में अपन का क्या होता है, एना फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। फिर अब हमको जब इसको M फेज में भेजना रहता है तो M फेज में भेजने से पहले अपन को क्या करना है, साइक्लिन B1 को हटाना है या फिर CDC25 फॉस्फेटेज से ये जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है उसको हटाना है और हमको क्या करना है, अपने CDK1 और साइक्लिन B1 को एक्टिवेट कराना है M फेज में। तो जो कि M फेज में हमारा काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, तो साइक्लिन जो है हमारा साइक्लिन B1 और CDK1 जो है M फेज पे एंट्री कर जाएगा। और अगर ये वापस से फिर इसको डिग्रेड हो गया तो वापस से सेल डिवाइड हो गया और वापस से CDK1 इनएक्टिव फेज में जाके G1 साइकिल फेज पे चला गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. अब नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑफ यू। वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन।
एंड दैट इज अगर आप CDC25 को म्यूटेट कर दोगे तो क्या होगा? मैम आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन जो हुआ है वो वैसा ही रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? सेल पे क्या इफेक्ट हो सकता है? साइज मैम उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, स्मॉल साइज में होता है। साइज लंबा हो जाएगा सर। साइज बढ़ते जाएगा। ओके, तो देयर इज आई गेस कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट कि सेल साइज छोटा होगा या सेल साइज बढ़ेगा। ओके देन सेकंड क्वेश्चन इफ आई वांट टू आस्क कि अगर V1 म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? जल्दी डिवाइड। मैम कैंसर। कैंसर? कंप्लीट सेल ग्रोथ नहीं होगा और सेल डिवाइड हो जाएगा। ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? मेरे को बस एक आंसर बताओ, अगर CDC25 म्यूटेट हुआ तो सेल साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिवाइड नहीं होगा सेल्स। ओके गुड। और V1 म्यूटेट हो गया तो? जल्दी डिवाइड हो जाएगा, साइज छोटा रह जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। तो अगर क्या हुआ, CDC25 म्यूटेट हो गया मतलब फॉस्फेट हटाने वाला कोई है नहीं, मतलब सेल प्रिपेयर करके रखा है सारा सामान, ठीक है। और G2 फेज में जाके क्या हो गया, सब क्यूमुलेटिव हो गया, लेकिन उसको आगे से सिग्नल ही नहीं मिल रहा है कि फॉस्फेट हटाओ, फॉस्फेट हटा के उसको डिवाइड करो, करेक्ट। तो आगे जब उसको मिल ही नहीं रहा है कि तुमको आगे बढ़ने का इंडिकेशन ही नहीं दे पा रहा है CDC25, क्योंकि वो म्यूटेट हो चुका है, तो एक्सेस में क्या कर रहा है, V1 आके फॉस्फोराइलेट करते जा रहा है और फॉस्फोराइलेट करते जा रहा है किसको? इनहिबिटरी फॉस्फेट को। कौन से पोजीशन में? टायरोसिन, बताओ। इनहिबिटरी 15 और 14 है ना, एक्टिवेटिंग तो है भी है ही नहीं फिलहाल, तो 15 में इनहिबिट करेगा। वेरी गुड। तो इनहिबिटरी 15 दैट इज योर टायरोसिन 15 एंड थ्रियोनिन 14, ये दोनों फॉस्फेटेज याद रखना है तुम लोग को, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो अब क्या होता है, इस पे अगर इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेट तो एक्सेस ऑफ V1 वहां पे जाके क्यूमुलेटिव हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल जो है रेडी तो है बट इसको आगे बढ़ने का कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यू विल गेट द elongated cells in increased G2 है, in increased G2 phase। अब दूसरा क्वेश्चन था कि अगर एक्सेस ऑफ CDC25 हो गया और V1 क्या हो गया, म्यूटेट हो गया। अब V1 म्यूटेट हो गया मतलब कोई इनहिबिटरी आ ही नहीं रहा है वहां पे, ठीक है, मतलब वो चलते जा रहा है, फॉस्फोराइलेशन होता जा रहा है एक्टिवेशन का। अब फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है एक्टिवेट का, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, सेल्स का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है और यहाँ पे G2 फेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? वैसे यहाँ पे एस बॉम्बे में भी अपन ने पढ़ा था कि मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स कुछ है, तो जिसमें CDC13 है और क्या है, CDC2। तो CDC और CD2 एक ही साइक्लिन और एक ही CD के अपन किस में पढ़े थे, एस बॉम्बे में। तो यहाँ पे भी वो किसको इनहिबिट करता है, V1 को, ठीक है। अब कमिंग टू नेक्स्ट द थर्ड फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर अपन ने क्या पढ़ा, प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन, ठीक है। सेकेंड अपन ने क्या देखा, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। थर्ड क्या है अपना, CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स। तो इन वर्टिब्रेट्स क्या होता है, CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स में देखो, एक सबसे पहले ये अपना यहाँ पे आता है, दैट इज CDK इंटरैक्टिंग प्रोटीन काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, SIP और KIP, जो कि किसको इनहिबिट करता है, साइक्लिन A और CDK2 को। अब अगर मैं साइक्लिन A और CDK2 को इनहिबिट कर रही हूँ तो मेरा कौन सा जो फेज है वो अफेक्टेड होगा, बताओ। G1 S G2 कौन सा फेज अफेक्टेड होगा, हेलो बताओ। मैम एक बार रिपीट करें, आवाज काट रहा था। आवाज नहीं आ रही थी मैम। अच्छा ओके सॉरी। अगर मैं CDK इंटरेक्टिंग प्रोटीन काइनेज में किसी इनहिबिटरी प्रोटीन का इनहिबिशन करवा रही हूँ जो कि इफेक्ट कर रहा है किसको, साइक्लिन A और CDK2 को, तो मेरा कौन सा फेज अफेक्टेड होगा, एस फेज। ओके गुड, एस फेज इनहिबिट होगा, ठीक है।
अब देखो, अब एस फेज को हम इनहिबिट करा दिए। क्यों इनहिबिट करा रहे हैं हम एस फेज को? क्योंकि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन पे अगर जा रहा है, तो उसने अगर कोई गलत प्रोटीन, अगर कोई गलत डीएनए का रेप्लिकेशन करवा दिया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उसी फेज में चेक करवा सकते हैं और इनहिबिट करा सकते हैं। तो वो कौन इनहिबिट करेगा? P21, P27 और P57। ठीक है, ये तीनों जो है वो उसको ट्राई करेंगे कि वो उसको इनहिबिट कर दे और उसको आगे बढ़ने ना दे। क्लियर? नेक्स्ट अपना इनहिबिटरी काइनेस जो होता है वो होता है काइनेस 4, जो कि P16, P15, P18 और P19, जो कि क्या करता है, सेल साइकिल प्रोग्रेशन को ब्लॉक कर देता है बाय बाइंडिंग CDK4 एंड CDK6 एक्टिविटी। और अपन ने देखा है कि CDK4 और CDK6 एक्टिविटी को जो इनहिबिट कर देगा वो कहाँ पे हो जाएगा, G1 फेज में उसका इनहिबिशन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, यस मैम। ओके, तो ये फैक्टर भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम लोग को कि P21, P27, P57 कौन से साइक्लिन्स को इनहिबिट कराएगा और कौन कौन से फेजेस में। तो एक बार अपन को साइक्लिन्स याद है तो अपन को पता चल जाएगा कि वो कौन से फेज में इनहिबिट हो रहा है, और दूसरा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक जो कौन कौन से इनहिबिटरी काइनेज है जो उसको इनहिबिट करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अभी जैसे मैंने अपन ने पढ़ा कि SDK CDK को वो इनहिबिट कर रहे हैं, तो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू इनहिबिट दैट फेज। सो लाइक वी विल सी नाउ दैट व्हाट इज द रोल ऑफ SCDK। ओके, तो अपने पास SCDK में कौन कौन से थे, CDK2 और साइक्लिन A। तो बेसिकली रोल जो होता है एस फेज CDK का, कि वो ट्रिगर करता है किसकी, डिसअसेंबली ऑफ सम प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स एट द ओरिजिन। तो अगर किसी में डिफेक्ट आ गया हमारे रेप्लिकेशन करते के टाइम, तो वो क्या करते हैं, डिसअसेंबली, मतलब MCM2 हेलिकेज आ गया, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं ORIC में जाऊंगा, मैं CDC6 CDT ORIC को आइडेंटिफाई कर लिए कि हमको यहाँ से अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। बट जैसे वो SCDK में है, उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ में डिफेक्ट है, हमको उसको स्टॉप करना है। तब SCDK का काम आता है कि वो क्या कर देगा, सबको डिसअसेंबल करा देगा, अलग अलग तोड़ देगा। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे एक टाइप का SCDK का काम हो जाएगा कि वो डिसअसेंबली करा देगा सारे जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है जो ओरिजिन में ऑलरेडी आ चुके थे। फिर CDC6 और CDTT जो कि ORIC में बाइंड होते हैं, उनका भी क्या करा देगा, इनएक्टिवेशन करा देगा। और ये इंश्योर करा देगा कि जब भी देखो, एक सेल में हमेशा एक ही बार क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अगर एक ही बार रेप्लिकेशन हमको इंश्योर कराना है, क्योंकि एक ही सेल में अगर बार बार रेप्लिकेशन होते रहा तो क्या हो जाएगा, हमको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं और डिसरेगुलेशन, एक डिसबैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो SCDK का काम क्या है, वो इंश्योर करता है कि ईच ओरिजिन इज एक्टिवेटेड ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल। मतलब ईच सेल साइकिल में एक ही बार एक ही ओरिजिन रहे और एक ही बार उसका रेप्लिकेशन हो। ओके, दिस इज द रोल ऑफ SCDK। नेक्स्ट, अब क्या होता है, अपन साइक्लिन B की बात की है ना, अब अपन को थोड़ा सा जानना है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सो व्हाट इज अवर MPF? दिस इज अवर मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो अब सबको पता है कि जैसी सबको पता है oocytes क्या होते हैं। हेलो हेलो, फीमेल है। यस मैम। ओके, ठीक है, तो अब देखो oocyte में क्या होता है कि वहां पे डेवलपमेंट होता है किसका, ओवरी का। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे उन्होंने जो मॉडल लिया वो फ्रॉग का लिया, दैट इज Xenopus। ओके, इसका साइंटिफिक नेम है Xenopus। तो अब उन्होंने Xenopus का एग लिया। अब उसको क्या किया, जो एग होता है सेल्स की मियोसिस फेज में, वहां पे वो क्या होता है, अरेस्टेड रहता है, G2 स्टेज में अरेस्टेड रहता है फॉर अप टू 8 मंथ्स। ठीक है, अब 8 मंथ्स तक वो क्या रहा, अरेस्टेड रहा। अब अपन ने क्या किया, इस अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमने क्या डाल दिया, प्रोजेस्टेरॉन डाल दिया। ठीक है, अब जैसे प्रोजेस्टेरॉन डाल दिया, तो प्रोजेस्टेरॉन डालने के बाद वो आगे के फेज में चला जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाहर से उसको ग्रोथ फैक्टर्स दे दिए। ठीक है, तो वो जैसे गया तो सेकेंड फेज में वो क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है एट द सेकेंड फेज ऑफ मियोसिस, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, सेकेंड
मियोसिस 2 में अब यहाँ पे ये अरेस्ट हो गया, ठीक है। जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन, तब तक वो क्या रहेगा, इनएक्टिव फेज में रहेगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो चीज यहाँ पे जब हमने इसको जब अरेस्ट करवा दिया फ्रॉग oocyte प्रायर टू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है, इस साइटोप्लाज्मिक फैक्टर को हमने एक दूसरे oocyte लिया, उस दूसरे oocyte को अरेस्ट करा दिया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, और अरेस्ट कराने के बाद ये जो साइटोप्लाज्मिक है इसको हमने क्या किया, इस पे ऐड करा दिया। तो जैसे ही हमने इमैच्योर जो डोनर था, जो कि मियोटिक फर्स्ट फेज में क्या था, इनिबिटेड फॉर्म में था, अरेस्टेड था, उस पर जैसे ही हमने एमपीएफ डाला तो वो क्या हो गया, मैच्योर बन गया। तो जो ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट हमने डाला दूसरे मियोटिक अरेस्टेड फेज ऑफ oocytes में, तो जैसे ही हमने ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट डाला वो क्या हुआ, एक्टिव हो गया, दैट इज इट हैज गॉन टू द मैच्योर फेज। तो जो फैक्टर, जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर हमने इंड्यूस करवाया, दैट इज अवर मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो इसके थ्रू यहाँ पे एमपीएफ का डिस्कवरी हुआ। अब एमपीएफ है क्या, एमपीएफ क्या है अपना, साइक्लिन, एनीवन, कौन सा साइक्लिन है, B1, और कौन सा सीडीके है, 1. वेरी गुड, ठीक है, CDK1. This two consist of what? This two consist of your maturation promoting factor. Okay? यहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई है. Next question for you. Although answer is there, but still I want you all to try. The mammalian oocyte prior to sperm entry is arrested at what stage of cell division? Hello? Yes, ma'am. The mammalian oocyte prior to sperm entry is arrested at what stage of cell division? सेकेंड मियोसिस मेटाफेज ही है मैम, अभी आप बताएं. Okay, very good. और ये previous year question का है. This question came in CSIR at I guess 2011. Okay? So you need to remember each and everything which is basic and important to remember. Okay. Next, we are coming to the role of MCDK. That is, अब अभी अपन ने क्या पढ़ा कि माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है, इसका क्या काम है, इसको अपन मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं. तो अभी अभी अपन ने देखा कि उसको मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको वो अगर कोई भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट अपन किसी भी इनएक्टिव मियोसिस फेज ऑफ oocyte में अगर अपन डालते हैं तो वो किस में चले जाता है, मैच्योर फेज में. इसलिए अपन उसको बोलते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर. ठीक है. अब देखो एमसीडीके का सिंथेसिस कब होता है, एस और G2 फेज में. तो हमको पहले से इसको तैयार रखना है ताकि वो जैसे ही एम फेज में जाए तो मियोसिस करा दे या माइटोटिक डिवीजन कराना स्टार्ट कर दे. अब जैसे एमसीडीके जो है वो क्या इंड्यूस कराता है, तो वो क्या कराता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कराता है. ठीक है, मतलब जैसे जो क्रोमेटिन है इंडिविजुअल है उसको क्या कराता है, वो कॉम्पैक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन से फेज में और ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है या फिर कौन सा माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है जो कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन कराता है या फिर न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन कराता है या फिर असेंबली कराता है माइटोटिक स्पिंडल एपेरेटस का, जहाँ से क्रोमोसोम जो है अलाइनमेंट होने लग जाते हैं. कौन से फेज में, मेटाफेज में, मतलब मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये सब किसके थ्रू होता है, एमसीडीके के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट जो है एमसीडीके फॉस्फोराइलेट करता है किसको, कंडेंसिन को. कंडेंसिन हम आगे पढ़ेंगे कि दो क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखता है. जैसे कि ये क्रोमोसोम है मेरा, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. वॉइस हेलो, वॉइस आ रही है, हेलो, अब आ रही है मैम, चलेंगे. ओके ओके. तो अब देखो ये जो दो क्रोमोसोम है अपने पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अटैच होता है अपना कंडेंसिन. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स.
ये सब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सेंट्रियोल से अटैच करा के इसको क्या करते हैं, सेपरेशन कराते हैं तो मेटाफेजिक प्लेट में। लेकिन हमको इंश्योर रहना है कि जब तक मेटाफेज या एनाफेज नहीं आ रहा है तब तक ये दोनों एक दूसरे से बाइंड रहे, उससे पहले एक दूसरे का सेपरेशन नहीं कराए, ठीक है। तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, कंडेंसिन होता है। क्लियर। अब ये जो कंडेंसिन है इसको तो अब हटाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि एमसीडी के जब इसको हटाएंगे तभी वो मेटाफेज या फिर एनाफेज में जाके वो डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो क्या करता है एमसीडी के, इसको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा ताकि ये दोनों क्रोमोसोम्स का क्या हुआ, सेपरेशन हो सके, ठीक है। दूसरा ये कराता है लेमिन प्रोटीन्स। लेमिन प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर एनवेलप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अपना क्या न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या न्यूक्लियस को भी एनवेलप पे लेमिन प्रोटीन्स को ये स्टेबलाइजिंग नेटवर्क के थ्रू फॉस्फोराइलेट कराता है ताकि वापस से लेमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके एट द टेलोफेज, ठीक है। आफ्टर एसोसिएशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स एमसीडीके कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट एपीसी। अब जब सब कुछ सही है यहाँ पे तो वो क्या करता है, किसको रिक्रूट करता है, एपीसी कॉम्प्लेक्स को। इसको मैं डिटेल बताऊंगी एपीसी का वर्क क्या है, वो कैसे इसको सेपरेट कराता है ड्यूरिंग द विच फेज, एनाफेज फेज, ठीक है। एपीसी किससे रहता है, एपीसी जो है वो सीडीसी 20 से अटैच रहता है। दूसरा एपीसी के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एपीसी सीडीसी 20 और दूसरा एपीसी CDH1, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं एट द अर्ली माइटोसिस, और एक्टिव होते हैं जब वो क्या जाते हैं, लेट माइटोसिस स्टेज में जाते हैं या फिर G1 फेज में जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस। तो हमको ये साइक्लिन को जो है डिग्रेड करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको नेक्स्ट फेज में जाना है, ठीक है। ये इसको अभी डिटेल पढ़ेंगे अपन। अब देखो पहला कंपोनेंट आता है अपना APCCG, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और साइक्लोसोम, क्लियर। अब देखो यहाँ पे साइक्लिन बी के साथ कौन अटैच्ड है, CDK1, जो कि क्या है, एक्टिव है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, APC कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। क्यों अपन को इसको डिग्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन बी को क्यों इंपॉर्टेंट डिग्रेड करना, एनीवन? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। अंदर माइटोसिस से एग्जिट करने के लिए और आगे फर्दर सिंथेसिस में री एंट्री करने के लिए। वेरी गुड, है ना। तो हमको इसको डिग्रेड, और ये कैसे टाइप का है, एपीसी अपन फर्स्ट स्लाइड में पढ़े कि कैसे टाइप का ये डिग्रेडेशन करवाता है। ubiquitin proteasome degradation. वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और कौन से एंजाइम में बाइंड होता है, यूबिक्यूटिन लाइगेज। हाँ वो तो है, लेकिन E3 में बाइंड होता है, ठीक है। तो देयर वाज वन क्वेश्चन कि ABC/C कौन से टाइप के यूबिक्यूटिन लाइगेज पे बाइंड कराता है, मतलब कैसे टाइप का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कराता है। तो द ऑप्शंस वेयर E1, E2 और E3, सो द आंसर विल बी E3, ओके। तो अब क्या करता है एपीसी, क्या करता है, इसका साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन कराता है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जो अपन पीछे देखे थे, दैट इज योर CDC20, क्लियर। और इस पे बाइंड होता है CDH1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो एपीसी कॉम्प्लेक्स जो है वो 13 सब यूनिट का बने रहता है, और ये क्या कराता है, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कराता है, किसका, साइक्लिन बी का। तो अब CDK1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, और ये इनएक्टिव हो गया तो मतलब अब यहाँ पे हम आगे जा सकते हैं। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे सेप्रेस और सिक्योरिन, ठीक है। सेप्रेस क्या करता है और सिक्योरिन, देखो सेप्रेस और सिक्योरिन क्या करते हैं, एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। तो जब वो एक दूसरे से बाइंडेड रहते हैं तो वो कौन से फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सिक्योरिन डिग्रेड हो गया तो सेप्रेस एक्टिव हो गया। सेप्रेस एक्टिव हुआ तो यहाँ पे अपन ने पिछले साइड में देखा कि यहाँ पे कोहेसिन अटैच रहता है दो क्रोमोसोम के बीच में। तो जैसे ही सेप्रेस यहाँ पे एक्टिव हो गया तो क्या करा देगा, कोहेसिन का ब्रेकेज करा देगा, और जैसे ब्रेकेज हुआ तो ये क्या है, जो दो क्रोमोसोम्स है अपने पास
वो सेपरेट हो जाएंगे और सेल क्या है, कौन से फेज में चली जाएगी, एनाफेज में। क्लियर? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। Okay, now we will see one question related to here. The mitotic cycling CDK activity peaks in M phase. Okay, ये तो अपन को समझ में आ गया कि साइक्लिन CDK की एक्टिविटी M phase में पिक मतलब ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बताओ मेरे को रीज़न बताना। आई नो द आंसर इज गिवन बट आई वांट द रीज़न कि ऐसा क्यों होता है। Anyone? Hello? I'm expecting answer, explanation कि ऐसा क्यों होता है। बताओ। मैम एपीसी इनएक्टिव होता है। हाँ वो तो इनएक्टिव, वो तो फिर यहाँ पे जाके एक्टिव हो जाता है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, माइटोटिक साइक्लिन सीडी की एक्टिविटी पिक्स इन एम फेज। तो इसका रीजन बताना है कि वो क्यों इसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो माइटोटिक साइक्लिन सिंथेसाइज्ड ओनली इन एम फेज। तो ऐसा तो नहीं है कि माइटोटिक साइक्लिन सिर्फ एम फेज में स्टार्ट हो रहा है। अपन ने देखा है कि वो पहले से G1 और S फेज में इसका स्टार्ट हो चुका है उस ग्राफ में, फर्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ माइटोटिक साइक्लिन एक्यूमुलेट्स ओनली इन लेट G2। तो थ्रेशोल्ड मतलब सबसे ज़्यादा उसका अमाउंट जो है वो माइटोटिक साइक्लिन का एक्यूमुलेट हो जाता है ओनली इन लेट G2। नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़े थोड़े साइक्लिन स्टार्ट हो जाते हैं पहले स्टेज में बनाना। ठीक है, फिर थर्ड है साइक्लिन सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरेशन ओनली इन एम फेज। ऐसा भी नहीं है कि इसका एक्टिवेशन जो एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन, हमको यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन तो कराना ही नहीं है, हमको यहाँ पे क्या कराना है, काइनेज सब यूनिट है उसको एक्टिवेट कराना है बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। ठीक है, जैसे अपन V1 का देखे थे, तो जैसे CDC25 फॉस्फेटेज आता है, फॉस्फोराइलेशन हटाता है, तो क्या होता है, हमारा CDK एक्टिव हो जाता है। रिमेंबर दैट स्लाइड? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CDC25 आया, फॉस्फेटेज हटाया और क्या हुआ, उसको एक्टिव करा दिया। तो एम फेज से फिर अब वो क्या करेगा, आगे की फेज में चला जाएगा। तो this slide says about, this question says about that the kinase subunit is activated by dephosphorylation only in M phase. समझ में आया क्वेश्चन? जो 161 फॉस्फेट जो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट, वहां पे तो फॉस्फेट एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा, ओके, मतलब यू डिडंट गेट दैट स्लाइड। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने पहले ही बोला कि ये क्या इनहिबिटरी है, दिस इज इनहिबिटरी। जो V1 है वो इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड कर रहा है। मतलब ये जो डोमेन है टायरोसिन का, देखो दो चीज हो सकती है, तो फॉस्फोराइलेशन हो सकता है या तो डीफॉस्फोराइलेशन हो सकता है। ठीक है, एक जगह हम फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो उस चीज का इनहिबिशन हो सकता है, या फिर हम एक जगह पे फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, एक्टिवेशन हो सकता है। लेकिन V1 का काम क्या है कि वो इनहिबिट करा रहा है। अब उसी फॉस्फेट को हटाना है ताकि वो एक्टिवेट हो सके, तो उसका काम क्या है, CDC25 का। क्लियर? यस मैम। समझ में आई बात, है ना? ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि जब आप डीफॉस्फोराइलेशन करा रहे हो, क्योंकि मैं फॉस्फोराइलेशन कराई V1 से जब मैंने उसका फॉस्फोराइलेशन कराया तो वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, किसको इनहिबिट कर रहा है, साइक्लिन B1 को। लेकिन जैसे ही मैंने इस फॉस्फेट को हटा दिया जो V1 लगा रहा था, किससे हटाया मैंने, CDC25 फॉस्फेटेज से हटा दिया। तो जैसे ही मैंने हटाया तो वो एम फेज मेरा क्या हो गया, एक्टिव फेज में चला गया। तो दिस व्हाट दिस सेज, द काइनेज सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। क्लियर? दिस इज द एम फेज वाला जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन रहता है कि डीफॉस्फोराइलेशन के बाद ही एक्टिवेशन होता है, लेकिन बाकी जगह फॉस्फोराइलेशन जब होता है तभी वो एक्टिव हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि शायद जून 2016 या दिसंबर 2016 में आया था। ओके,
ओके, एक नया नया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन विजिबल है ना ये वाला 26th वन? हेलो, Yes. ओके। तो इन मेटाजोन सेल साइकिल मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ बताओ ये क्वेश्चन कि मेटाजोन सेल साइकिल मतलब कि इसमें मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन जब होता है, मतलब जब सेल साइकिल मियोसिस फेज में है और उस मियोसिस फेज में जब वो मेटाफेज टू कहाँ जाता है, एनाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट में रहते हैं, करेक्ट? मेटाफेजिक प्लेट में। इसमें तो अब क्या करना है अपन को, इसको सेपरेट कराना है कि अब तुम लोग अलग अलग जगह जाओ। अब सेल डिवाइडिंग फेज में जाएगा, यहाँ पे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से अब तुमको अलग अलग जाना है, अलग अलग जाके तुमको अलग अलग सेल पे डिवाइड होना है। अब इनको सेपरेट कराना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि किसी यहाँ पे डायग्राम में कि ये कोहेसिन से अटैच्ड है, यहाँ पे सेपरेज आएगा, इसको तोड़ेगा कोहेसिन को, है ना। तो यही बताना है तुमको कि मेटाफेज टू एनाफेज जब जाएगा, ट्रांजिशन होगा, तो वो एक्टिविटी कौन रेगुलेट कराएगा? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जब CDC20 से प्रोटीजोल डिग्रेडेशन होगा तब सेपरेज कोहेसिन प्रोटीन को अलग अलग कर देगा क्रोमोसोम, उसके बाद एनाफेज में चला जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर CDK1 और साइक्लिन B क्यों नहीं हो सकता? We हो सक- not 25 तो V1 is responsible for cell division and CDK is for elongation whatever, तो ये तो पहले से ही इसका रोल कंफर्म है। और लेकिन APC कोहेसिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा और एनाफेज में जाएगी चीजें। बट APC CDK1 की साइक्लिन B को भी तो फॉस्फोराइलेट करा रही है ना। और जब साइक्लिन B का डिग्रेडेशन हो रहा है तभी तो वो M फेज में जा रहा है, मतलब एनाफेज में जा रहा है कि नहीं? इफ आई एम रॉन्ग देन कॉन्ट्रडिक्ट मी, व्हाई आई एम रॉन्ग? एनीवन? आई एग्री विथ यू कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तो इसका आंसर होना ही चाहिए, क्योंकि एनाफेज ही सेपरेज को सिकुरिन से हटा रहा है, बट एनाफेज तो CDC20 वो कर रहा है साइक्लिन B और CDK1 पे, और CDH1 ये कर रहा है अपना सेपरेज को हटा रहा है। हाँ, तो लेकिन साइक्लिन B से CDK1 को हमको एक्टिवेट कराना है, तभी वो आगे की फेज में जाएगा, करेक्ट? लेकिन APC का MC के कॉम्प्लेक्स जो होता है वही एक्टिवेट करता है APC को, कॉम्प्लेक्स को, इसलिए शायद। देखो इसका आंसर दोनों है, ठीक है? इसका आंसर दोनों है। यहाँ पे देखो APC दोनों चीज कर रहा है, सेपरेज को सिकुरिन से हटा रहा है, साइक्लिन B पे फॉस्फोराइलेशन करा रहा है, उसका डिग्रेडेशन करा रहा है। अगर APC इन दोनों में से एक भी यूनिट को नहीं कराया, ये तो रेगुलेट होता है बाय CDH1, ये रेगुलेट होता है बाय CDC20। तो अगर हमको M फेज पे अपने साइकिल को भेजना है, उस M फेज को बढ़ाना है, या फिर हमको अपने सेल्स को एनाफेज पे आगे निकालना है, तो दोनों प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब साइक्लिन B का फॉस्फोराइलेशन इज इम्पॉर्टेंट, APC कॉम्प्लेक्स का सेपरेज से सिकुरिन को सेपरेट कराना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब CSIR पे ये क्वेश्चन आया था, तो जिन्होंने भी इस पे टिक किया था CDK1 और साइक्लिन B या फिर APC और C पे, तो दोनों पे उसको मार्क्स मिले थे। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार दो आंसर सही हो जाते हैं, ठीक है? अगर यहीं पे अगर मैं एक और ऑप्शन डाल देती, 5th ऑप्शन। मैम लेकिन यहाँ पे तो एक्टिविटी पूछा है ना। कौन सी एक्टिविटी? हेलो, मतलब किसकी एक्टिविटी से रेगुलेट होता है? हाँ, किसकी एक्टिविटी से? APC तो दोनों को रेगुलेट करा रहा है ना। लेकिन मैम करा तो APC ही रहा है ना। हाँ, APC ही करा रहा है, बट साइक्लिन B का अगर वो एक्टिविटी नहीं कराया तो ऑप्शन में दिया हुआ है रेगुलेट CPC ही है। CC, यू आर नॉट रेगुलेट नहीं कर रहे हैं CDK1 और साइक्लिन B।
कैसे नहीं रेगुलेट कर रहे? अगर साइक्लिन बी पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन मैम फॉस्फोराइलेशन कराने वाला तो एपीसी और सी कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ एग्जैक्टली है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन बोल रहा है मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज कॉन्ट्रडिक्टरी, इसलिए जिसने सीडी के 1 भी लगाया और एपीसी भी लगाया, दोनों को मार्क्स मिले थे। क्लियर? हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो मेटाफेज टू एनाफेज में जाएगा, लेकिन अगर साइक्लिन बी का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो मेटाफेज टू एनाफेज कैसे जाएगा? आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड द रेगुलेटेड बाय, तो रेगुलेट तो एपीसी और सी कर रहा है, लेकिन देयर इज आल्सो क्वेश्चन कि ट्रांजिशन कौन करवा रहा है। अगर ऑप्शन में सीडी के और साइक्लिन बी नहीं होता तो डेफिनेटली इसका आंसर सिर्फ क्या होता? एपीसी और सी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन और दे दिया कि सीडी के और साइक्लिन बी भी है, तो इसीलिए मतलब समवन हैज रेज्ड क्वेश्चन इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच आई एम सेइंग यू ऑल पीपल, तो इसलिए ये हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था कि इसमें दोनों आंसर होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन इज ड्रिवन बाय प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस called condensins, which are members of a family of structural maintenance of chromatin. ठीक है, that is SMC proteins that play a key role in the organization of eukaryotic chromosomes. Condensins along with another family of SMC proteins called cohesins. Okay, significantly contribute to chromosome segregation during mitosis. ये अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है, if the cells are treated with an inhibitor of CDK1, okay, phosphorylation immediately before the cells enter M phase. अगर अपन क्या कर रहे हैं? इनहिबिटर डाल दे CDK1 का, ठीक है, और क्या कर रहे थे यहाँ पे? सेल्स की M phase पे एंटर होने से पहले ही अपन ने CDK1 का इनहिबिटर डाल दिया। Which of the following statements is most likely to be true? ठीक है, तो आई नो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बट स्टिल आई वांट कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दो इसका। मैम इनहिबिटर ऑफ सीडीके1 फॉस्फोराइलेशन किया है ना, तो सीडीके1 फॉस्फोराइलेशन किया तो फिर वो अपना एपीसी सी कॉम्प्लेक्स उस पे काम ही नहीं करेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ पे एपीसी, यहाँ पे उसने क्या किया? CDK1 का इनहिबिटर डाल दिया। क्या कर दिया? इसको इनहिबिट करा दिया। अब शायद ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि CDK1 और साइक्लिन बी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनीवेज, तो जैसे इसने यहाँ पे क्या किया? CDK1 को इनहिबिट कराने वाला क्या करा दिया? यहाँ पे सपोज, चलो ये साइक्लिन बी ने भी काम कर लिया, सपोज इस पे उसने इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको CDK1 को इसने इनहिबिट करा दिया, इनहिबिटर डाल दिया, तो अब ये क्या आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जब ये आगे बढ़ेगा नहीं तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे? एक साथ अटैच्ड होंगे, सेपरेट भी काम नहीं करेगा, और टुगेदर कोहेसिन अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एनाफेज में वो सेपरेशन ही नहीं कराएगा, कोहेसिन वहां पे अटैच्ड रहेगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब देखो, एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था विच वॉज डन बाय राव एंड जॉनसन, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एस फेज है और उसके बाद अपने पास क्या है? G1 फेज। ये दोनों के न्यूक्लियस को क्या करा दिया? फ्यूजन करा दिया। तो जैसे ही उन्होंने इसका फ्यूजन कराया तो क्या होगा? तुम लोग बताओ मेरे को, बताते जाओ मेरे को। जैसे ही एस फेज में क्या होता है? अपना डीएनए का सिंथेसिस होता है। G1 फेज में अपना क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज होता है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों का फ्यूजन कराया तो जो G1 का फेज है जो इनएक्टिवेटेड है, तो एस फेज में तो ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो एस फेज का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? G1 फेज को कि तुम भी चलो, तुम भी एस फेज में जाओ, तुम क्यों यहाँ पे रुके हुए हैं? उसके ऐसे प्रमोटिंग फैक्टर्स उसके पास है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि एस फेज न्यूक्लियस रिलीजेस समथिंग दैट ड्राइव्स G1 न्यूक्लियस इनटू एस फेज। तो वो अपने साथ क्या किया? G1 को भी एस फेज में लेके चला गया।
ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब हम एस फेस को G2 के साथ किए तो अब क्या हुआ, यहाँ पे दिक्कत आ गई। G2 एक ऐसा फेज है जहाँ पे ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका रहता है इन द सेंस ऑलरेडी यहाँ पे 4C में है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे है, इसके पास बना बनाई चीजें हैं। तो वो एस फेस चाह के भी G2 को प्रमोट नहीं कर सकता कि तुम मेरे पास आ जाओ, या फिर G2 एस फेस को प्रमोट नहीं कर सकता कि तुम मेरे पास आ जाओ। दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, सेपरेट न्यूक्लियस देते हैं। दैट इज G2 न्यूक्लियस रेजिस्टेंट टू एस फेस प्रमोटिंग फैक्टर, कि नहीं तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैंने सब कुछ तैयारी रखी है अपना कि मैं म्योटिक डिवीजन में जाऊंगा, यू कांट मैनिपुलेट माई न्यूक्लियस। क्लियर। थर्ड आता है G1 और G2 फेज में। G1 और G2 फेज में क्या होता है कि अब इन दोनों के बीच में कौन सा फेज आता है, एस फेज। अब इसने क्या किया, एस फेज को तो स्किप कर दिया। अब अगर जब ये एस फेज को ही स्किप कर देगा तो इसके पास ऐसा कुछ प्रमोटिंग फैक्टर नहीं रहेगा कि वो G1 को बोले कि G2 पे आ जाए या G2 को बोले G1 पे आ जाए। तो ऐसा रिवर्सल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एक फेज आगे जा चुका है, तो ये पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। तो G1 एंड G2 डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही नहीं है, ये अपना दोनों क्या करते हैं, सेपरेट न्यूक्लियस देते हैं। क्लियर। अब फोर्थ उन्होंने क्या किया, इंटरफेस पे जितने भी थे मतलब G1S G2 को क्या क्या जो अपना मियोसिस पे जाते हैं एम फेज, तो उस पे जाके फ्यूज करा दिया दोनों न्यूक्लियस को। तो अब क्या हुआ, एम फेज तो ऑलरेडी भाई आगे जा चुका है, ठीक है, इसके पास माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर है जो हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में फ्रॉग के उस साइड वाले में। तो ऑलरेडी उसके पास क्या है, एक मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है, एक माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है। तो वो क्या करता है, सारे इंटरफेज में जितने भी फेजेस हैं सबको क्या करता है, मियोटिक फेज में जाता है। तो माइटोटिक न्यूक्लियाई रिलीज माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर दैट अफेक्ट्स ऑल इंटरफेस न्यूक्लियाई। क्लियर सबको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो एक क्वेश्चन बताओ। आई विल गिव यू 1 मिनट, सोचो और मेरे को सही आंसर दो। मैम खाली सी गलत है, बाकी 4 नंबर होगा एपीटी। ये बीडी होगा इसका आंसर। एनीवन एल्स? यस मैम एबीडी। ओके, क्यों होगा एक एक करके बताना, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फ्यूजन ऑफ ए सेल इन G1 फेज विथ S फेज कॉज द G1 न्यूक्लियस टू एंटर S फेज, बिल्कुल सही बात है, अपन ने देखा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अपॉन फ्यूजन ऑफ ए G2 सेल विथ एन S फेज सेल G2 सेल डज नॉट एंटर S फेज, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा कि G2 सेल को अगर तुम S फेज से फ्यूज कराओगे तो वो कभी एंटर नहीं करेगा। क्यों मैंने इसका रीजन बताया, क्योंकि G2 सेल ऑलरेडी बना के रखा है, उसके पास 4C है, उसको पीछे नहीं जाना है। कोई भी सेल साइकिल पीछे नहीं जाएगी, हमेशा कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि G2 सेल को S फेज के साथ करोगे तो G2 सेल डज नॉट एंटर S फेज, ये तो गलत है, मतलब ये तो मतलब सही बात है कि वो एंटर नहीं करेगी, ठीक है। अपॉन फ्यूजन ऑफ ए G1 सेल क्योंकि मैम वापस डीएनए सिंथेसिस नहीं करेगा ना। हाँ बिल्कुल सही, वो वापस से डीएनए सिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं कि अपॉन फ्यूजन ऑफ ए G1 सेल विद अ G2 सेल G1 न्यूक्लियस इनटू G2 फेज। अब बताओ G1 को अपन G2 से करेंगे तो वो वापस क्या पीछे मुड़े के देखेगा, या फिर G1 G2 पे डायरेक्ट बिना डीएनए सिंथेसिस को किए G2 फेज पे जाएगा क्या? नहीं,
नहीं जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट विल बी आल्सो रॉन्ग। ठीक है, हेलो, हाँ, ओके। सो अब फोर्थ स्टेटमेंट है, फ्यूजन ऑफ एन एस फेज सेल विद अ एम फेज causes the S phase cell to immediately enter mitosis। बिल्कुल M phase के पास सारी तैयारी है, आप उसको S cell के साथ फ्यूज कराओ, वो उसको डायरेक्टली माइटोसिस फेज पे भेज देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, A, B, D। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, आई एम गिविंग यू 1 minute एंड यू कम विथ सम एक्सप्लेनेशन। हुआ? यस मैम। बताओ। मैम जीवन फेज सेल्स ही होगा क्योंकि एस फेज के सेल्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं, और जो भी थाइमिडिन वगैरह इनकॉर्पोरेट डाला है उसमें, वो जीवन फेज में प्रिपरेशन करेगा और एस फेज में दीजिएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल्स जो है अपना एस फेज में, मतलब इसके पास डीएनए रेप्लिकेशन बना हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या किया अपन ने, 3 से फ्यूज कराया। एक था अपना G1 फेज, दूसरा था अपना G2 फेज, और तीसरा था अपने पास क्या, M फेज। क्लियर? अब इसको सबको कौन से मीडियम में ग्रो किया उन्होंने, थाइमिडिन। ठीक है, अब जब थाइमिडिन में किया तो जहाँ पे ज़्यादा डीएनए सिंथेसिस होगा तो वहीं पे हमको ज़्यादा क्या मिलेगा, थाइमिडिन का अमाउंट मिलेगा, है ना। तो अब जब फ्रेशली अपन को एस फेज किससे फ्यूज कराएंगे, G2 से फ्यूज कराएंगे तो उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आई कांट से कि G2 पे मिलेगा नहीं, बट कंपैरेटिवली लेस मिलेगा, क्योंकि G2 फेज एस फेज के पीछे नहीं जाएगा, ऑलरेडी उसके पास बन चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, तो वो पीछे नहीं जाएगा। इसलिए G1 के कंपैरेटिवली मेरे को G2 फेज ऑफ सेल साइकिल पे थाइमिडिन का अमाउंट जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, अब एम फेज तो वो तो फिर हम G2 को स्किप करके एम फेज पे भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं G1 को बोलूँ कि भाई चलो तुम फ्यूज कर लो एस फेज के साथ, तो क्या होगा, इसके पास ऑलरेडी प्रिपेरेटिव थिंग्स तो ऑलरेडी है, और एस फेज ऑलरेडी फ्रेशली डीएनए बना रहा है, तो मेरे को थाइमिडिन का अमाउंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, एस और G1 के बीच में। क्लियर? क्लियर सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पे अपन देखते हैं कि ओके, 3 टाइप की चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे सेल्स पे। एक होता है क्या, कि वो चेक करता है कि हमारा नॉर्मल सेल्स जो है इनिशियल फेज में जब उसका डिवीजन हुआ वो सही हो रहा है कि नहीं। सेकंड होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। थर्ड होता है अपने पास डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। ठीक है, तो सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि सेल डिवीजन में सेल्स को जाने लायक है कि नहीं, इज इट करेक्ट इट और नॉट। ओके, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये वाला सेक की मशीनरी कैसे फॉर्म होती है सेल साइकिल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अपन यहाँ तक की स्टोरी अपन को समझ में आ चुकी है, तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू ऑल। ठीक है, कि ये स्टोरी पे बैठ रही है कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। यहाँ पे फिर वापस से ये कहाँ पे चला जाएगा, G1 पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अपन को पता है कि साइक्लिन बी और CDK1 यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे सेपरेस सेक से बाइंड रहेगा जो कि सेक्यूरिन इसको इनएक्टिवेट करके रखेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रो मेटाफेज आने लगता है तो क्या करता है, यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी आने लगते हैं कि इसको एक्टिवेट करना है कि नहीं, क्योंकि अगर एक बार APC एक्टिवेट करेगा तो इसको सेपरेट करा देगा। तो
ये क्या करता है, CDC20, जैसे अपन ने पिछले स्लाइड्स में ही देखा कि CDC20 इसको के साथ जो रहता है APCC रहता है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, एक MCC ऐसा एक मॉलिक्यूल डाल दूँ जो क्या करेगा, CDC20 को ही इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अगर ये CDC20 को इनहिबिट कर दिया तो जो मेरा इनएक्टिव APCCC है वो एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो अगर वो एक्टिव नहीं हो सकता है तो मेरा जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होएगा नहीं, वो कोएसिन को डिसॉल्व करेगा ही नहीं, साइक्लिन बी को डिग्रेड करेगा ही नहीं, तो मेरा सेल जो है वो अरेस्ट हो जाएगा इसी फेज में, दैट इज प्रोफेज या फिर इनिशियल फेज ऑफ द सेल साइकिल में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जैसे अपन ने पहले ही देखा कि साइक्लिन बी में यूबिक्विटिनेशन होगा और 26S प्रोटियोसोम में जाएगा और इसका डिग्रेडेशन कराएगा, एक्टिवेट करेगा सेपरेज को। ठीक है, और CDK1 जो है वो हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये अभी तक की अपनी स्टोरी थी। लेकिन यहाँ पे नया जो एड ऑन यहाँ पे हुआ है कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट को में अगर हमको देखना है कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसको अगर हम सेपरेट करा रहे हैं तो वो सही से सेपरेट होगा कि नहीं, या फिर सेल्स में कुछ डैमेज आया तो वो चेक करेगा कि आगे हमको सेल को भेजना है कि नहीं, कि इसको एपोप्टोसिस करा देना है। ठीक है, उसकी नॉर्मल नेचुरल डेथ करा देनी है कि उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब हमारा किस में आएगा, स्पिंडल चेक पॉइंट में आएगा। ठीक है, जो कि CDC20 को इनहिबिट कर देगा कि नहीं, तुमको अभी एक्टिव नहीं होना है, इसको सेपरेशन नहीं कराना है। ठीक है, तो ये अब क्लियर पिक्चर हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरा स्पिंडल चेक पॉइंट ऑफ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है कि वो मतलब नॉर्मल जो अपन देख रहे हैं कि CDC20 यहाँ पे बाइंड हो रहा है, APC को एक्टिव करा रहा है, सिक्योरिन को यूबिक्विटिनेशन करा रहा है, सेपरेज को एक्टिव करा रहा है, कोएसिन आ रहा है और उसको क्लीव करा दे रहा है। ठीक है, ये हमारा जब चेक पॉइंट ऑफ है कि भाई हमारा सेल नॉर्मल चल रहा है, हमको इसको चेक पॉइंट के थ्रू ले जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जैसे सेल पे कुछ डैमेज आया, ठीक है, या फिर कुछ म्यूटाजेंस आए, तो क्या होता है, हमारा स्पिंडल चेक पॉइंट ऑन हो जाता है। ठीक है, जैसे स्पिंडल चेक पॉइंट ऑन हुआ तो यहाँ पे क्या है, हमारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या रहता है, उसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ था तो इसने इसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। लेकिन अब भी मेरे को सब कुछ चेक करना है कि मेरे को सेल्स को मियोसिस या माइटोसिस स्टेज में भेजना है कि नहीं भेजना है, तो वो क्या करता है, APC को इनएक्टिव करता है। अब APC को इनएक्टिव करने के लिए हमारे पास 3-4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एक तो रहता है MAT2, CDC20 तो इसके APC से अटैच्ड ही रहता है। दूसरा रहता है PUB3 और PUBR1। ठीक है, तो ये जो MAT2, PUBR1 ये सब इसको अपन क्या बोलते हैं, अरोरा, क्या बोलते हैं, अरोरा बी काइनेस। ठीक है, दिस इज अरोरा बी काइनेस। ठीक है, तो अरोरा बी काइनेस के 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है MAT2, PUB3 और PUBR1, जो कि क्या करते हैं, इसको इनएक्टिव रखे रहते हैं कि नहीं भाई अभी आगे मत बढ़ो, हम इसको इनएक्टिव करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि इसको आगे मियोसिस या माइटोटिक फेज में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्योरिन और सेपरेज को भी इसने इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि APC इनएक्टिव है तो सिक्योरिन और सेपरेज भी इनएक्टिव होगा, तो अपना जो ये कोहेजिन है वो भी क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो अब क्या हुआ, ये सब जब इंटैक्ट रहेगा तो सेल्स आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि चेक पॉइंट ने इसको रोक दिया है। क्लियर? तो अरोरा बी काइनेस का जो रोल है वो यहाँ पे है, एक तो इंटरफेस में वो क्या करता है, P53 जो अपना मॉलिक्यूल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी ये स्पिंडल असेंबली मतलब जब ये P53 MDM2 से बाइंड रहता है, ठीक है, तो ये जब MDM2 से बाइंड करता रहता है, तो जब ये P53 MDM2 से बाइंड करता रहता है तब तक ये कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, P53 क्या करता है, चेक करता है कि सेल पे कोई म्यूटेशन तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, अगर म्यूटेशन और डैमेज है तो उसको रिपेयर करना है कि नहीं करना है, और अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो उसको सीधा से एपोप्टोसिस पे भेज दो। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है, MDM2 उसको बांध के रखता है जब तक वो नॉर्मल कंडीशन पे है, लेकिन जैसे ही P53 ने डिटेक्ट किया कि नहीं भैया कुछ तो डैमेज है, तो वो बोलता है MDM2 को कि तुम डिग्रेड हो, इसका यूबिक्विटिनेशन करो और मेरे को फ्री करो। तो जैसे ही P53 क्या हो जाएगा, फ्री होगा, तो वो क्या करेगा, एपोप्टोटिक फैक्टर्स को एक्टिवेट करा देगा।
ठीक है, और सेल को बोलेगा अब तुमको कैंसर सेल नहीं बनना है, तुमको नॉर्मल एपोप्टोसिस में जाना है, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारा जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे स्पिंडल चेक पॉइंट का रेगुलेशन होता है, यहाँ पे p53 का बाइंडिंग होता है, अरोरा बी का होता है, सर्वाइविन का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, p53 का यूबिकिटिनेशन हो जाता है जब MDM2 से अटैच रहता है। और जब अगर p53 का डिग्रेडेशन हो गया, मतलब सेल क्या है हमारा नॉर्मल चल रहा है। अब हमको यहाँ पे कोई चेक पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमको चेक करना है कि सेल पे कोई डैमेज हो गया तो MDM2 का डिग्रेडेशन हो जाएगा और MDM2 p53 को एक्टिवेट कर देगा और p53 क्या करेगा, एपोप्टोटिक फैक्टर्स लाएगा, ठीक है। और जैसे कि होता है प्यूमा नॉक्सा, ये BCL2 को एक्टिवेट करा देगा कि चलो अब सेल्स को क्या करना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, इसका एपोप्टोसिस कराना है, वरना ये कैंसर बन सकता है। क्लियर यहाँ तक? हेलो, यस मैम। यस अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सबसे पहले ये बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा ड्यूरिंग माइटोसिस, एंड देन वी विल रैप अप द सेशन फॉर टुडे। ओके, ये दिसंबर 2019 में है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सब CSI नेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बताओ। एनीवन? पहले ये वाला क्वेश्चन का बताना, ठीक है। ऑरोरा बी काइनेज ही होगा क्या मैम? गुड। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी बताओ। मैम एक कंफ्यूजन है। बोलो। ये जो NDC80 कॉम्प्लेक्स है, यस मैम। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, क्या मैं भूल गया या फिर देखा नहीं? नहीं, ये नहीं देखा। दैट्स व्हाट की ना, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। बट CSIR में क्या होता है, हमेशा जब क्वेश्चन आते हैं तो एक नया नया कंसेप्ट अराइज होता है, ठीक है। तो चलो आई एम गिविंग यू इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, अरोरा बी काइनेज ही होगा, जो अपन ने यहाँ पे देखा कि वो उसको लाइक MAD2 PUB3 PBR1 सबको अटैच रखता है जब उसको देखना देता है। तो अब अपने पास क्या है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोलेजन है। यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब ये क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसको क्या करना है, अटैच करना है, मतलब अटैच रहने देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना स्पिंडल चेक पॉइंट काम कर रहा है कि इसको अब डिवीजन में नहीं जाना है। पहले मेरे को इसको चेक करना है कि वो सही से माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड है कि नहीं, ठीक है। तो जो NDC80 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो NDC80 कॉम्प्लेक्स है वो क्या इंश्योर करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का जो अटैचमेंट है वो आपका आवाज कट रहा है। ओके, अब ठीक है। हेलो हेलो, हाँ मैम, अब आया। हाँ ओके। तो NDC80 जो है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है और यहाँ पे क्या होता है, अपना काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर से क्या होता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैचमेंट शो करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैचमेंट साइट,
ठीक है। तो NDC-80 जो है वो इंश्योर करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल सही से अटैच्ड है कि नहीं काइनेटोकोर से और सेंट्रोमियर रीजन ऑफ क्रोमोसोम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग माइटोसिस इन अ यूकैरियोटिक सेल इनकरेक्ट काइनेटोकोर अटैचमेंट्स आर करेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स। तो इसका अटैचमेंट को इंश्योर करने के लिए कुछ हम ट्रायल्स या फिर एरर्स को डिफाइन करते हैं। तो जो द टेंशन बेस्ड मैकेनिज्म एक्टिंग एट द काइनेटोकोर इज लिंक्ड विद ensuring दैट सिस्टर क्रोमेटिड पेयर्स आर प्रॉपरली ओरिएंटेड एट द स्पिंडल। तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, इसका स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है। तो जो इनर काइनेटोकोर है वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेट्स द माइक्रोट्यूबुल अटैचमेंट साइट इंक्लूडिंग द NDC-80 कॉम्प्लेक्स। तो मतलब NDC-80 कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे अटैच रहता है। इट इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड हियर विच एंश्योर्स दैट कि अच्छे से जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो काइनेटोकोर से अटैच्ड हो, ताकि जब सेपरेशन हो तो कोई भी एक भी क्रोमोसोम बचे ना, ठीक है। टू रेगुलेट द सिस्टर क्रोमेटिस अटैचमेंट इन ए बाई ओरिएंटेशन, दैट इज जब सेपरेशन हो तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो बाई ओरिएंटेशन मैनर में उसका सेपरेशन ठीक से हो। तो दिस इज अवर NDC-80 और NDC-80 के पास ही अपना क्या बाइंड होता है, अरोरा बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी अरोरा बी काइनेज, क्लियर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ NDC-80 इज अ, अब जो भी तुम लोग नोट्स बना रहे होगे ना उसमें ये मेंशन कर लेना, क्योंकि जैसे कि दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा होता है कि इसी कंसेप्ट पे बेस में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, क्लियर। तो ये जो NDC-80 कॉम्प्लेक्स है वो अटैचमेंट को इंश्योर कराता है माइक्रोट्यूबुल का टू द काइनेटोकोर, और ये चेक करता है कौन, अरोरा बी काइनेज, कि वो अटैचमेंट सही से हुआ है कि नहीं, क्लियर क्लियर। यस मैम। तो क्या इंश्योर कराता है NDC-80 कि माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों तरफ से अटैचमेंट शो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क है, इसका आंसर मेरे को कल बताना कि कैसे बर्डिंग सेल्स दैट आर डेफिशिएंट फॉर मैट2 अपन यहाँ पे पढ़े, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है किसका, अरोरा बी काइनेज का, मैट2 PUB3 प्लस PUBR1, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैट2 एंड MDM2, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। MDM2 क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पे MDM2 किसको बांध के रखा है, P53 को वो बाइंड करके रखता है। ओके। मैट2 क्या कर रहा है, APC कॉम्प्लेक्स को एक्टिव होने नहीं दे रहा है। गुड। तो मैट2 PUB3 और PUBR1 क्या कर रहे हैं, APC को बाइंड करके रखा है कि हमको सेल्स को आगे बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। अब उसके हिसाब से इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन टेक स्क्रीनशॉट एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, ओके। यस मैम। ओके, सो और किसी को किसी में डाउट है पिछले कोई भी स्लाइड में, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया, यू वांट फिर से एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, देन यू कैन आस्क मी। एनीवन? मैम वो देखा था 4 टाइम्स DNA कंटेंट हो जाता है और 2N क्रोमोसोम रहता है। समझा नहीं मुझे वो थी 4 टाइम्स DNA कंटेंट हो रहा है तो क्रोमोसोम 2N कैसे रह जा रहा है। ओके, तो हाँ वही चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन किया। जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं जीवन फेज में, ये क्या है, अपन किससे बने, 2N से बने ना, ठीक है। देखो पहले अपने गैमेट्स में क्या होता है, NN होता है, NN कंबाइन होता है, NN कंबाइन होके क्या बनाता है, 2N बनाता है। क्लियर है ये चीज़? हेलो, यस मैम। है ना। तो अब ये हमारे क्या जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स में क्या है 2N है। फिर हम क्या बनते हैं, सोमैटिक सेल्स आते हैं, सोमैटिक सेल्स में हमारे पास डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड में क्या आता है 2N आता है ना।
तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे, G1 फेज में, प्रिपरेटरी फेज में तो सेम रहेगा क्योंकि इसका सिंथेसिस नहीं हुआ है। और एल्स आई गेस यू आर कंफ्यूजिंग विद दिस सी एंड क्रोमोसोम, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, मैं जो फोटो है हाँ सब में क्रोमोसोम्स ही बताया है ना, मैं उससे कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, तो देखो ये क्या अपना एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार, मतलब ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अलग अलग। सपोज ये 1 है, ये 2 है, क्लियर। अब जैसे ही अपना एस फेज आया तो एक ही जो क्रोमोसोम है उसका क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, क्लियर। आपको जेनेटिक्स में ये और अच्छे से समझ में आएगा, ये क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए एक ही क्रोमोसोम के, ठीक है। और ये क्या अपने पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी क्या है अपने पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो 2n है वो 2n ही रहेगा, मतलब अगर ये क्रोमेटिड है, ठीक है, इसका अब ये यहाँ पे सिंगल ये क्रोमेटिड है, अब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो ये क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया, क्लियर। तो दिस विल बी रिमेन 2n, बट एस फेज में क्या हुआ, उसका रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का, तो इसका कंटेंट बढ़ेगा, किसका कंटेंट बढ़ेगा, डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा, तो इसलिए वो क्या हो गया, 4C हो गया। लेकिन G2 फेज जब अपन आए तो डीएनए का कंटेंट वही रहेगा, 4C रहेगा, और जो क्रोमोसोम है अपना वो 2n रहेगा क्योंकि डिप्लॉइड सेल्स है। लेकिन अगर मैं इसी का नंबर बढ़ा दूं, सपोज अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा दी, यहाँ पे मैं एक और एक क्रोमोसोम ला दी, तो क्या होगा, ट्राइसोमी हो सकती है, ट्राइसोमी इन द सेंस क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, है ना। जेनेटिक्स में तुम लोग नॉन डिसजंक्शन भी पढ़ोगे, अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है ट्राइसोमी हो जाती है, ट्रिपल एक्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर डबल एक्स और वाई का होता है, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम्स, क्रोमोसोम रिलेटेड सिंड्रोम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारे सेल्स को अगर नॉर्मली और अच्छे से रेगुलेट करना है तो उसको क्या करना है, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रखना है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ नहीं सकता। लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है, वो भी 4C बढ़ रहा है, इट कांट बी 6C, इट कैन ओनली बी 2C से 4C, मतलब इतना जो है डीएनए कंटेंट एक उसमें उसका सिर्फ डबल होगा, दैट इज 4C, क्योंकि इनिशियल में ये क्या था, 2C था, फिर वो ऐसा क्या नहीं हो होता, गया। जैसे अभी एक सेल है इसमें 2n है, वो जब नया सेल बनाएगा, दो डॉटर सेल बनाएगा, तो मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाए और दोनों में 2n डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर 4n बना तो वैसा नहीं होता। तो दैट्स व्हाट, अब G2 फेज में आया, G2 फेज के बाद M फेज में जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे इसके पास है 2n कंटेंट है, 2n कंटेंट है, उसके लिए मेरे को पूरा सेल साइकिल पढ़ाना पड़ेगा। तो अब 2n है, तो 2n के बाद जब मैं जहाँ पे जाऊंगी तो मेरे सेल्स दो में डिवाइड होंगे, तो तभी तो nn क्रोमोसोम्स आते हैं मियोसिस हाँ फेज में, करेक्ट। मतलब और जब ये क्रोमोसोम की मैं बात कर रही हूँ तो मेटाफिजिक प्लेट में क्या है, मेटाफिजिक प्लेट में सारे क्रोमोसोम एक साथ आ गए, है ना, ये एक मेटाफिजिक प्लेट बन गया मेरे पास। फिर एनाफेज में क्या होगा, यही क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट में है, तो ये ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, है ना। तो फिर ये हाँ ऐसे ऐसे जब सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ से एक सेल बन जाएगा और यहाँ से मेरा एक सेल बन जाएगा, ओके क्लियर। मैम। मतलब हाँ फिर से ये एन आ जाएगा, तो हमको ये बैलेंस रखना है, अगर यही चीज बैलेंस नहीं होगी तो फिर डिजीज होगी, है ना। काइनेटिक वोक ट्राइसोमी, टर्नर सिंड्रोम, ये सब जितने भी डाउन सिंड्रोम, ये सब जितने भी क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीजेस है वो इसकी वजह से होगी, क्लियर। यस मैम। ओके, सो और किसी को कोई डाउट, कोई स्लाइड में या फिर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत जो यू वांट मी टू एक्सप्लेन वंस अगेन। मैम एक पूछो। बार हेलो हेलो, मिल जाए। आपकी आवाज कट रही है, हेलो। पीपीटी मिलेगा क्या बोल रहे हैं मैम? अच्छा, ओके, मैं सर को दे दूंगी, फिर आप लोग को मिल जाएगा। ओके ओके सर,
Hello, sir. Okay, Sapnita, I have completed. Okay, sir. Okay, so we will meet tomorrow at same time, 8:30. Yes, sir. Okay, okay, and this I will share this slide in that classroom group. You can get downloaded from there. Okay, sir. Okay, thank you everyone. Thank you, Sapnita. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Very good lecture. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.